but somehow I could not represent India. And my whole dream was, well, acting was always there, like throughout. Since beginning only, I really loved making, those videos where I could express myself. Love triangle है या क्या है? थोड़े थोड़े hint छोड़ रही हूँ. Okay, many twists. So, in this exclusive video interview, we have honor speaking with Priyanka Bajaj Sibal, the crowned Mrs. India 2022 and a talented actress. Welcome, Priyanka, to Filmy Beat. This is your host, Anamika Bharti. So, how Hey, have you Namika, been? thank you so much for inviting me. How have you been? I'm good, absolutely fine, doing good, and just uh, getting into more and more acting projects. How about you? How are you? I'm fine too. Was looking forward to have an interview with you. So, Same talking about here. your career, Priyanka, could you share with your fans the highlights and experiences of your modeling career and how you started it? So I started my pageantry journey in 2021. So I started my pageantry journey in 2021, where I became Mrs. India for the first time. But somehow I could not represent India, and my whole dream was to represent India internationally. So then I did Mrs. India again in 2022, and by God's grace, so I became the winner for the second time. And in 2023, finally, I could fulfill my dream, and that was representing India internationally in USA. In 2023, I went to USA. So that was one tick mark I really wanted to do. Congratulations for that. Thank you. And I think after that, since then, I have been getting, I had been promoting a lot of brands, and that's how my modeling career started eventually with alongside pageantry. I have done four campaigns with the Malabar Golden Diamonds, and I promote a lot of brands in India and internationally also. So, what inspired you to shift from your modeling career to your acting career? Well, acting was always there, like throughout. Since beginning only, I was like, I really loved making, those videos where I could express myself. I'm an emotional person. I'm a creative person. So वो कहते हैं ना बॉलीवुड के गाने आते थे तो उसपे खुद थोड़ा सा डांस करके देखना एक्सप्रेस करना और फिर वो वीडियोस को देखना अच्छा बना है सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड दिस जर्नी एंड आई यूज्ड टू पोस्ट इट ऑन सोशल मीडिया अ lot. And I used to enjoy this whole process also. Because then, Mrs. India happened, and then, of course, it took my 3 years. It's not very spontaneous that it happens. It looks very easy, but it takes away a lot of your time and a lot of your dedication. And, I had to take a lot of coachings and all. So I could not concentrate on acting fully. And that's when 2023 में जब Mrs. India मैंने finally जब India represent करा उसके बाद स्क्रिप्ट्स आनी शुरू हुई एंड देन मतलब गे वाली एक स्क्रिप्ट आई जहां पे मुझे पुलिस इंस्पेक्टर का रोल ऑफर हुआ एंड मुझे Yeah. लगा कि किसी भी फीमेल के लिए इससे ज्यादा इंटेंस रोल नहीं हो सकता जहाँ पे दिस जब आप इस मूवी को देखेंगे देयर इज अ स्पेक्ट्रम ऑफ इमोशंस जहाँ पे शी इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर जो कि एक गर्ल नेक्स्ट डोर भी है बट कैसे वो ट्रांसफॉर्म होती है एक पावरफुल पुलिस इंस्पेक्टर में वो एक देखने को मिलेगा लोगों को एंड आई So, थिंक वो Priyanka, yeah, sure. Sorry. So, tell us more about Kathakar and when is it set to release and where can your fans stream it? वेल कथाकार अभी तो फिल्म फेस्टिवल्स में घूम रही है Hmm. वो काफी सारे फिल्म फेस्टिवल्स में जा चुकी है काफी सारे अवार्ड्स मिले हैं मूवी को भी और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मुझे मिला है मूवी के लिए 8 मिले हैं अभी तक एंड पर आई थिंक वही जैसे मैंने आपको बोला कि सबसे अच्छी बात थी इस मूवी की कि जो मैंने रोल इसमें पोर्ट्रे करा कहीं ना कहीं मैं भी इससे रेजोनेट कर रही थी कथाकार का मतलब होता है स्टोरी टेलिंग एंड एंशियंट टाइम्स में अगर मैं बात करूं तो होता था कि अपनी मतलब कथाओं को बताना जैसे प्रोबेबली ओरल स्टोरी टेलिंग से या डांस के थ्रू इसमें मैंने कथक भी परफॉर्म करा है मैं पहले ही बता दूं मैं कथक डांसर नहीं हूँ That मैंने was that was something I was about to ask कि आपने सीखा या फिर ये पहले से आपके अंदर टैलेंट था कि क्या? मुझे डांस का बहुत शौक है मैं डांस करती हूँ बॉलीवुड डांस और मतलब
बट हाँ, मेरा क्लासिकल बेस बिल्कुल नहीं है। तो मैंने मूवी के लिए स्पेशली मुझे 3 दिन ही मिले थे। 3 दिन भी ज्यादा बोलूंगी, 3 घंटे थे टोटली जो मैंने प्रैक्टिस करी है। ललिता सोनी जी हैं जिन्होंने काफी एक्ट्रेसेस को भी सिखाया है काफी प्रोजेक्ट्स के ऊपर। सो उनसे मैंने ट्रेनिंग ली एंड थैंकफुली वो बहुत ही अच्छी टीचर थी। उन्होंने जितना हो सकता था मुझे सिखाया। और अब आप देखेंगे कथक जो इसका एक अलग से वर्जन है। पूरा जो कथक मैंने परफॉर्म करा था वो उसका टीजर अभी रिलीज होने वाला है 1-2 दिन में। और उसके बाद पूरा कथक का वो भी रिलीज होगा प्रोडक्शन चैनल पे यूट्यूब पे। सो उसके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेहनत तो लगी थी। मतलब 3 घंटे तो मैंने सीखा था लेकिन उसके बाद बहुत मेहनत करी और उसके बाद जैसे परफॉर्म करा। और एंड कथक आते आते जैसे आपने पूछा कि सो फेब्रुवरी में मोस्ट प्रोबेबली मूवी रिलीज होगी बिकॉज अभी फिल्म फेस्टिवल्स में 1-2 और फिल्म फेस्टिवल्स हैं जहाँ पे अभी जा रही है मूवी। सो उसके बाद पूरा सर्कल लेके मूवी रिलीज कर होगी। अभी डेट सेट नहीं हुआ है रिलीज का। हाँ, अभी डेट सेट नहीं हुआ बट फेब्रुवरी में डेफिनेटली मूवी का रिलीज मंथ सेट है। ओके ओके। और जैसे मूवी का टाइटल है कथाकार, काफी यूनिक टाइटल है, सो इट्स टोटली रिलेटेड टू कथा एंड द स्टोरी टेलिंग, कि सॉरी कथक एंड स्टोरी टेलिंग, कि हाउ कैसे कथक के थ्रू स्टोरी टेलिंग हो रही है पूरी मूवी में। हाँ, जैसे इसमें जो इंस्पेक्टर साई है जिसका रोल मैंने निभाया है, शी इज अ प्रोटैगनिस्ट इन द मूवी। एंड वो कैसे एक इसमें चाइल्ड ट्रैफिकिंग जैसे केस को, मतलब सेंसिटिव टॉपिक को देखा, मतलब बताया गया है इसमें। कैसे वो इस स्टोरी को अनरावल करती है अपनी डिटर्मिनेशन के थ्रू। और वो ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। मतलब कहते हैं ना यंग टाइम में। इसमें गाना भी अभी रिलीज हुआ है हाल ही में, दिल की हाँ बैटरी टाइम। उसमें एक अलग सी इंस्पेक्टर साई तो बिल्कुल नहीं दिख रही है बट दिस इज हाउ शी वाज इन पास्ट। एंड देन कैसे एक पर्टिकुलर उसकी लाइफ में इंस्टेंस होता है जो उसे बिल्कुल हाँ, चेंज कर मैंने देता है। ट्रेलर में भी देखा कि एक पास्ट लाइफ है, फिर वहां पे साई कुछ और है और यहाँ पे वो कुछ और है, तो पास्ट बिल्कुल। एंड प्रेजेंट का भी वो दिखाया गया है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बट वो एक इंस्टेंस है जो मैं अभी नहीं बताऊंगी, नहीं तो लोग मूवी देखने नहीं जाएंगे। तो ठीक है, सो वो हम लोग कैसे रिलीज चीज के होती लिए है। रख लेते हैं। बिल्कुल। ओके ठीक है, तो आप मेन फिगर हो मूवी में और ट्रैफिकिंग सेंसिटिव इशू दिखाया गया है मूवी में, सो व्हाट डू यू थिंक, लाइक फैंस कैसे, मतलब आपके फैंस उसको ग्रास्प करेंगे उस सेंसिटिव इशू को? अम, मुझे लगता है कि इसमें हर कैरेक्टर ने, सिर्फ मेरे कैरेक्टर नहीं, जो इंस्पेक्टर डैनिश हैं जिसका रोल निभाया है रुस्लान मुमताज ने, उन्होंने भी जैसे एक मतलब कहते हैं ना कि इंस्पेक्टर साइन को थ्रू आउट मूवी में सपोर्ट करा है कैसे आगे बढ़ने के लिए। और जब ये पूरा एक केस स्टार्ट होता है उसकी रियल लाइफ से भी जुड़ा है इंस्पेक्टर साइन की कहीं ना कहीं, उसके फादर से रिलेटेड है, मैं इतना हिंट कर पाऊंगी। एंड देन समहाउ कैसे वो इस केस को थ्रू आउट धीरे धीरे, कहते हैं ना, उसको कुछ कुछ क्लूज मिलते हैं। तो वो कैसे धीरे धीरे स्टोरी को अनरावल करती है। और वही पूरा है। और इसी के बीच में थोड़ा थोड़ा सा कथक का भी है। और मतलब उसने बचपन में कथक सीखा था तो कैसे उनकी मदर उनको याद दिलाती है कि तू कथक करती थी उसी तरह से सोचा कर। और कहीं ना कहीं उससे वो हिंट क्लूज मिलते हैं जहाँ पे वो इस पूरे, जैसे कहते हैं ना, जो क्रिमिनल्स को एंड में जाके पकड़ती है। तो क्या सो इंस्पेक्टर साई एंड में जाके चाइल्ड ट्रैफिकिंग रोक पाती है या नहीं? ये तो ऑडियंस पे छोड़ती हूँ, थोड़ा सा देखने तो को छोड़ना चाहिए ना। मिला। इंस्पेक्टर सानी का क्या होता है, इंस्पेक्टर दानिश का क्या होता है, दोनों मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, या क्या लव ट्रायंगल है या क्या है, थोड़े थोड़े हिंट श्योर। छोड़ रही हूँ। ठीक है, many twists. Okay, so are you, Priyanka, are you looking forward to do more such female-centric movies in the future? एब्सोल्युटली, आई वुड लव इट। मतलब आई थिंक इट कुड बी एनीबडीज ड्रीम। मुझे लगता है कि मैं अभी ये नहीं देख रही हूँ कि मुझे रोल छोटा मिलेगा बड़ा मिलेगा, पर डेफिनेटली पावरफुल रोल जहाँ पे कहीं ना कहीं पे कहते हैं ना इमोशंस के साथ खेलने का मौका मिले, वो मेरा ड्रीम है। बाकी अभी मेरी कोशिश ये रहेगी जो रोल मिलेगा उसको कैसे खूबसूरत बनाऊंगी। बट डेफिनेटली फीमेल सेंट्रिक रोल्स में और करना चाहती हूँ। और आपको ही पता है कि आज की डेट में इतनी ज्यादा फीमेल ओरिएंटेड मूवीज नहीं बन रही हैं। सो अगर बनती हैं तो आई थिंक जनता भी उनको कहीं उसको कहीं ना कहीं पसंद करती है।
और मैंने ये हर जगह पे बोला है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये इसीलिए इतना एम्पावरिंग निकल कर आया है कि इसमें काफी लोगों, जैसे डायरेक्टर हैं जो अंशुमन चतुर्वेदी जी, उन मतलब दिस होल स्टोरी हैज बीन रिटन बाय हिम, डायरेक्टेड बाय हिम। तो वो देखिए एक मेल सेंट्रिक हैं, राइट। उसके बाद रुस्लान मुमताज हैं, उन्होंने थ्रू आउट मूवी में बहुत सपोर्ट करा है, ऑफ स्क्रीन, ऑन स्क्रीन। एंड जो मेरे हस्बैंड है, मैं उनके बारे में डेफिनेटली बोलना चाहूंगी, सिद्धार्थ सिब्बल। सो मतलब देखिए ना कि आज की डेट में भी जो मेल है वो भी विमेन को आगे सपोर्ट कर रहे हैं, और इस तरह की Sure. प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इसीलिए आगे आ भी रहे हैं और आई थिंक सक्सेसफुल भी हो रहे हैं। If I'm not wrong, your husband, आपके हस्बैंड सिद्धार्थ सबल भी एक्टर हैं, इसी एक्टिंग फील्ड में हैं। सो कभी ऐसा होता है कि मतलब हाउ डू यू गाइज यू बोथ सपोर्ट ईच अदर इन योर मूवीज? I think that has been a plus than a minus, I will say. We both motivate each other. अभी उन्होंने भी हाल ही में स्टार्ट करा है, सो ऑफ कोर्स मतलब एक होता है कहीं पे, क्योंकि ये फील्ड ऐसी है ना, कहीं पे थोड़ा सा मोरल डाउन होता है, तो मतलब मैं, मेरा जहाँ डाउन होता है वहां पे मेरे हस्बैंड मुझे मोटिवेट करते हैं, जहाँ उनका डाउन होता है वहां मैं उनको मोटिवेट करती हूँ। सो आई थिंक इट्स अ टीम वर्क राइट नाउ, सो इट इज वर्किंग इन आवर फेवर। Great. So Priyanka, please share with us some insights into your upcoming projects and what you'll be providing to your fans in the near future after Kathakar. सो कथाकार के बाद एक पंजाबी वीडियो सॉन्ग है जो अभी वो दिसंबर में रिलीज होने वाला था, बट अभी दिसंबर में पंजाब में डेट्स की वजह से रिलीज नहीं हुआ है। सो जनवरी में इट विल बी रिलीज्ड फाइनली। सो जहाँ पे मैंने एक म्यूट गर्ल का रोल निभाया है। सो इट्स अ स्टोरी बेस्ड सॉन्ग जो कि गुरमीत दोसांझ है, उनके ऑपोजिट मैंने उसमें काम करा है, और आकाश वाले जी ने गाना गाया है। वो गाना बहुत मतलब बहुत ही प्यारी और रोमांटिक सी वाइब है गाने की, बहुत ही खूबसूरत गाना है, और आई एम श्योर ऑडियंस को बहुत पसंद आएगा। वाइट हिल्स पे वो रिलीज होगा, एंड वो अभी जनवरी में देखने को मिलेगा लोगों को। और उसके बाद इसके हाँ जी, इसके अलावा आप और मूवीज कर रही हैं अभी? हाँ इसके अलावा अभी ओटीटी में कुछ प्रोजेक्ट्स की बात चल रही है। सो अभी मैं अनाउंस नहीं कर सकती, बट डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा बहुत जल्द। Wishing you all the best, Priyanka. थैंक यू सो मच, थैंक यू नमिता। It was nice talking to you, and we are looking forward to watch Kathakar. थैंक यू सो मच। गेस प्लीज सारी ऑडियंस को मतलब आई एम वेरी श्योर उनको कथाकार मूवी बहुत पसंद आएगी। बहुत ही दिल से मूवी बनी है, बहुत ही इमोशंस के साथ ये मूवी बनी है, और लोग कहीं ना कहीं इससे रेजोनेट भी करेंगे डेफिनेटली इस मूवी से। सो आई मीन जब भी मूवी रिलीज होती है फरवरी में, सो जरूर देखिएगा इसको OTT प्लेटफॉर्म पे।